Hi guys, this is Stuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 4 of Stuti Speaks. And today I have a very special guest with me whose name is Yashika. So hi Yashika, welcome to the podcast. थोड़ा सा context दे देते हैं how we met. So we were in the same spiritual school for a while. तो हम एक ही batch के like we were doing the same. We were in the same batch of life coaching, so that's how I know you. And later we got connected, and we also like have similar kind of beliefs to a certain extent, तो बहुत सारी चीजें मिलती है. Plus on a 3D, on a earthly level, she is a lead software engineer in JP Morgan Chase, which is a huge thing. Agar if somebody is new and if somebody is not in corporate, you go to Google and search about JP Morgans. It's a very huge thing. So good to see you on my show, Yashika. I'm so honored and blessed that you came in today एंड शेयरिंग योर जर्नी. तो आपसे शुरू करते थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन दे दो. आई एम श्योर मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस करी हैं. यू आर अ हीलर, यू आर नाउ डूइंग सो मेनी थिंग्स. आपका खुद का पॉडकास्ट भी है, इट्स टाइम टू बी अनप्लग्ड, इट्स ऑन यूट्यूब. तो वो भी है इनका. इफ समबडी वांट्स टू चेक तो वो भी चेक कर सकते हो. आई पुट ऑल डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. तो ओवर टू यू यशिका, स्टार्ट करो आपकी जर्नी, फिर हम वहाँ से लेके जाते हैं. कुछ क्वेश्चन होगा तो आई विल श्योरली आस्क. Sure. Thank you so much, Stuti, for inviting me and giving me opportunity to speak about my journey. And I am as thrilled as you are to be on this show. And regarding my journey, so I am a Delhiite, born and brought up in Delhi, India. And my journey is mainly rotating around my parents. So I have always been looking for their appreciation and approval in every choice that I make. And the people that who have known me over the time, they will definitely raise a hand. Yes, she's like that. So तो थोड़ा सा मुझे बता दो कि स्कूलिंग कहाँ से करी थी आपने दिल्ली में अपनी. दिल्ली में मैंने स्कूलिंग करी थी ज्योति मॉडल पब्लिक स्कूल आदर्श नगर टिल 10th स्टैंडर्ड एंड देन आई डिड इट फ्रॉम मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग. Oh wow. And after that, I did my BTech from Ashelon Institute of Technology. It's in Faridabad. Oh wow. So that's Hmm. been my school. That's been my education. I've done BTech in computer science and engineering. And my career, I have been working since last 12, 13 years as a software engineer. I have basically working on creating web applications. I started with mobile application development, but basically it's around software development as of now. And Wow. luckily, my coding was my first love, and Wow. I was blessed to have it and pursue it for a very long period of my life. And I love dancing with the code. Um, I can talk endlessly about my love for coding. Wow. So Hmm. so yeah, I think that's it. That's it. So abhi you are currently living in New York, India, New Yes. York, US. Sorry. So Yes. yeah, you are currently living there. So how did your basically obviously जब corporate में होते तो बहुत ज़्यादा on the go type life होती है. I'm very sure about it. So Yeah. how you reached US? फिर tell me how you started your spiritual journey. कैसे कैसे वो सब शुरू हुआ? ओके सो यूएस आने में मेरा कोई हाथ नहीं है. इट्स ऑल अबाउट माय हस्बैंड. ही इज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो ही गॉट अ पोस्टिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स. He is in L1, he's on L1 visa. So I moved with him here, and then I was already working with SideDocs. It's a Canadian setup by then. I was working remotely for them from India, and then I switched my job here at JPMC. Hmm. So that's Okay. that's how I came here, and that's how I got into JPM Chase. So credit to him for this. Regarding my spiritual journey, so it's a very vast topic. So when I was in my college, in at the age of 19 or so, I was brimming with a lot of choice making. So choices about what career to pursue. गेट करूँ कि एमबीए की तैयारी करूँ कि कैंपस ड्राइव की तैयारी करूँ. And then there were some love issues and all breakups and everything was going on. So I was in a mess state, and with God's grace
our college itself initiated a program somewhere near my residence where the first time I met Sri Prabhat Agrawal. He's my spiritual guru, my first spiritual guru. And the moment I was there in that session with him, he was talking, and I don't know where the time went. I was just hooked looking at him. और वो एज इतनी नाइव होती है ना, मतलब वो जो बोल रहे तो लग रहा था ओ माय गॉड, ऐसा होता है। मतलब इट वाज अ होल न्यू स्टफ टू मी कि अच्छा मैं यहाँ से ऑपरेट कर रही हूँ, अच्छा मैं ये ऐसे इसलिए कर रही हूँ। तो इट वाज वेरी वेरी चार्मिंग, very curious for me. And then I started taking more sessions. उनके workshops होते थे. I started going there. So उस टाइम पे ना चीजें नहीं समझ में आती थी मुझे। मैं मेडिटेट करती थी, बट मतलब मुझे नहीं पता था मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ मेडिटेशन से। आई हैड नो क्लू। और एक स्टेट ऐसा था कि मुझे डिप्रेशन सा हो गया था कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ। मैं सेशंस ले रही थी उसके बाद भी, मतलब उनके वर्कशॉप्स अटेंड कर रही थी, और मुझे नहीं समझ में आता था मैं कहाँ जा रही हूँ। इवेंचुअली आई ड्रॉप, मैंने छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया उसके बाद। आई गॉट मैरिड, फिर लाइफ चलती गई चलती गई चलती गई, एंड देन आई वाज एट द टॉवर मोमेंट कि भाई अब तो अगर नहीं किया तो डू और डाई सिचुएशन था वो मेरे लिए। और मैं आपको स्टार्टिंग में आई मेंशन्ड कि माय लाइफ रोटेट्स अराउंड माय पेरेंट, एंड आई हैड वन डिजायर, और उसके लिए मैं आई पुट एवरीथिंग ऑन स्टेक। कुछ मैंने नहीं छोड़ा था। माय जॉब, द सक्सेस, फेम, पेरेंट्स, सोसाइटी अप्रूवल, एवरीथिंग वाज एट स्टेक। और आई वाज blinded to have that desire Desire. fulfilled. I will not um, talk more about on that desire specifically, but I can tell my state. I was so hooked up on that कि मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं कर रहा था उस टाइम पे। एंड that was the time my brother, he I have a sibling, he's younger to me, behaves like an older one, but so Happens. he I've also have one behaves like a elder one. Yeah, go ahead. Yeah, yeah. yeah. So he was the one, he pushed me. Okay, take one, meet him, meet Prabhatji once. And so I tell you, before this, when he was in college, he went through a very bad breakup, and I was pushing him, meet Prabhatji once, and then you figure out you want to do. And then 10 years later, he was like, meet Prabhatji once, and then you decide what you want to do. So again, I started taking his workshops and talking to him, and somehow something happened. My spiritual journey initiated from there. Again, I started meditating from 40 minutes a day to 1 hour a day to 1.5 hour a day, Wow. multiple times a day. So there was a state I was used to be in meditation for 3 to 4 hours a day. और it was mainly about the heart chakra opening. बहुत ज्यादा वहाँ फोकस होता था कि to heal myself, to heal the heart, to heal the wound. And बट एक स्टेबल स्टेट चॉइस मेकिंग के लिए मेरे पास नहीं थी वहां पे। आई वॉज स्टिल हुक्ड अप टू दैट डिजायर, आई वॉज स्टिल मूविंग टूवर्ड्स दैट डिजायर। और आई लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड। आई लेफ्ट माई पेरेंट्स, आई लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड टू परस्यू दैट डिजायर। और वहां पे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। इवन गलत है सही है बाद में देखेंगे, बट आई एम डूइंग। वो जो स्ट्रेंथ थी ना कि टू परस्यू दैट विदाउट वरिंग अबाउट द राइट एंड द रॉन्ग, आई थिंक वो कहीं ना कहीं पावर थी। पावर देती है। वो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से पावर थी, बिकॉज आई कैन नॉट इवन ड्रीम टू नेगेट माई पेरेंट्स। मतलब मैं हम्म। इतना आई एम सो ऑटोमेटिकली, मतलब कॉन्शियसली मैं नहीं कहूंगी, बट अनकॉन्शियसली देर इज जैसे सायर वर्ड यूज करते हैं ना, दैट यू आर सायर टू समबडी, कि वो बोलेंगे तो वो होगा ही होगा। वो ऑटोमेटिक था मेरे पास, और बहुत लंबे टाइम आई एम फीलिंग सो इमोशनल राइट नाउ। Yeah, तो yeah, no problem. Yeah, go ahead. तो वो Yeah, था बहुत I think कहने that's को मैं in उनसे India. वो सब कहीं ना कहीं we as Indian children who are like quite obedient to a certain extent, वो हम सब में intrigued होता है कहीं ना कहीं. जैसे मैं अपने सिबलिंग को देखती हूँ, ही कैन टेक हार्ड डिसीजंस इन लाइफ, ही कैन टेक डिसीजंस इन लाइफ जहाँ वो
he's okay with parents not agreeing with them. हुँ, I can हुँ, pretend to do that, I can pretend to do that, but मेरे अंदर वो चलता रहेगा, oh my god, they are not okay with it, oh my god, they are not okay. वो ऑटोमेटिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्शियसली उसको कर रही हूँ, बट वो ऑटोमेटिक मेरे साथ चलता है, चल रहा था बहुत लंबे टाइम तक, and now तो I think I've grown that phase out. But yeah, at that time, I was searching YouTube, कुछ तो कहीं से मिल जाए, and then Param sir's video popped up. It's a line in every podcast I'm doing right now. Everybody comes across this, like, a video popped up from Param sir. I don't know what magic he has placed behind his videos that it's reaching to every person who's in need of हुँ, it. So um, Param sir ka video pop up hua. I didn't give it a second thought. I watched one video and I signed up for the course, the inner work engine, the inner work batch जो था उनके पास, राइट, and then लगातार मैं उनके कोर्स करती रही, inner work, basic inner work 1, 2, advanced, and then I met Guruji. The first time I met him, मतलब वो वहाँ पे आते थे, दीक्षा देने के लिए उनको एट्यूनमेंट, बुलाते थे, अट्यूनमेंट के लिए बुलाते थे परम सर। वहाँ मुझे लगता था कि ओ माय गॉड, गुरुजी हैं, पता नहीं कैसी पर्सोना होगी एंड ऑल, मतलब डायरेक्ट बात नहीं होती थी, बस वो दीक्षा देते थे और चले जाते थे। जब रेकी 1 फर्स्ट टाइम मैंने किया, तो वहाँ पे मेरे पास था कि पता नहीं, मेरे को तो रेकी का कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी कुछ आता ही नहीं, मैं तो नाम ही फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, मैं कैसे सीख लूँगी? 1.5 घंटे में क्या पढ़ा देंगे ऐसा मुझे? और मैं आपको बताऊँ, ही वाज़ सो काम, मतलब लग नहीं रहा था कि वो ही इज़ अ पर्सोना। मतलब जैसे एक गुरु का पर्सोना होता है, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, वो था ही नहीं वहाँ पे। मतलब इट वाज़ लाइक कि हाँ, मेरे को मेरा प्राइमरी स्कूल का टीचर पढ़ा रहा है और मैं पढ़ रही हूँ लिटरली एज़ एन एबीसीडी। तो मैं आई वाज़ वेरी थ्रिल्ड कि कैसे? हाउ कैन समबडी बी सो बिग एंड सो हम्बल? और हुँ, मेरे दोनों ही गुरुज़ के साथ, प्रभात जी के साथ भी और योगी बुद्धदेव के साथ भी, मतलब मेरे मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि ये ना एक एलिमेंट है। वहाँ पे ना आप बात दोनों एक ही कह रहे हैं। मतलब आप मेरे साथ हुआ है पीछे ऐसे कि एक ने चाँटा लगाया तो मैं दूसरे के पास चली गई, दूसरे ने चाँटा लगाया तो मैं पहले के पास चली गई। बट वो बात है कि वो चाँटा मेरे लिए है ही, वो ये चाहे ये दे चाहे वो दे, इट डज़न्ट मैटर कि कहाँ से कौन आ दे रहा रहा है, है? क्योंकि एलिमेंट वही है। हुँ, जब मैं भी वही हूँ तो बात तो वही कहेंगे ना, सच तो चाहे ए कहे चाहे बी कहे, सच तो सच ही रहेगा। तो राइट, बहुत टाइम लगा उस फेज़ से निकलने के लिए, वो जगलिंग से निकलने के लिए। हुँ। बस आई थिंक यहीं से मेरी ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ती गई, बढ़ती गई। और अब तो आपने गुरुजी के साथ पॉडकास्ट भी करा है, इट्स देयर ऑन योर चैनल। याह! सो नाउ राइट, राइट। एक एज के एक एक लाइन परम सर बोलते थे व्हिच आई यूज्ड टू वंडर कि एक स्टेज के बाद ना गुरु कन्वर्ट्स टू योर फ्रेंड, लाइक देन यू आर एबल टू बी मोर ऑथेंटिक विद, लाइक मतलब थोड़ा-सा होता है ना कि आप, आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग इट, बट कहीं न कहीं वो गुरु एक थोड़ा-सा फ्रेंड में कन्वर्ट व्हेन यू आर अ गुड स्टूडेंट, नॉट विद एवरीवन, व्हेन यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। आई डोंट नो या व्हाट आर योर आई थॉट्स ऑन थिंक दिस, बट मेरे को मुझे ऐसा लगा। मैम later kind of became a friendly figure for me rather than like completely a guru. राइट। Eh, आई थिंक बहुत टाइम लगता है उस चीज़ में टाइम ना, लगता है। कि आप ओपन अप हो सको। बहुत टाइम तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो ये बात छुपा लेती हूँ, मैं बोलूँगी नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? फिर और उन्हें पता आपको चला। कर करके पता लगता है कि उनको सब पता है भाई, तू क्या तो छुपा लेगी और क्या तो तू बचा लेगी। उनको बोलने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, दे कैन सी थ्रू यू। They दोनों, can see मतलब through दोनों you. गुरुज़ के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है। तुम तुम वहाँ तक पहुँचे भी नहीं होते हो, वो घूम-घाम के वो बिल्डिंग साफ करवा के, बंद करवा के वो वहाँ से आ चुके हैं, तो तुम क्या ही छुपा लोगे वहाँ पे? कोई Exactly. फ़ॉर्मेलिटी की फिर वहाँ मतलब ज़रूरत नहीं रह जाती, मतलब कोई पर्पज़ Hmm. सॉल्व ही नहीं कर रही है आपकी पर्पस ही था। फ़ॉर्मेलिटी, तो आप क्या करोगे और वहाँ पे? और वैसे भी ना गुरु के पास यू हैव टू गो इन द वैसे भी सरेंडर स्टेट में ही जाना पड़ता है। इफ यू आर नॉट गोइंग एज अ सरेंडर एंड सीकर, तो आप वैसे भी जो जो नहीं एब्जॉर्ब कर करेगा। सकते हो वो आप कर नहीं पाओगे। इवन आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू परम सर एंड ऋतु मैन, आई वाज एट दैट स्टेट ऑफ माय लाइफ के अब मेरे को नहीं पता क्या करना है, मेरी समझ के बाहर है। देयर इज़ नथिंग हुँ, माय माय ह्यूमन ब्रेन कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ, सो आई डोंट हैव ए ऑप्शन। एंड
आई डोंट नो, जो वो उन्होंने बोला मैंने वही करा, मतलब इट वाज़ जस्ट लाइक कि ये जो बोल रहे हैं मेरे को बस इनकी बात सुननी है, जो ये बोल रहे हैं। एंड आई डोंट नो लाइक फॉर एवरीबॉडी मे बी पता नहीं मतलब वो कैसे पार हो गया, अगर वो लोग नहीं होते आई डोंट नो हाउ हाउ वुड आई हैव सर्वाइव्ड, मतलब मैं ज़िंदा भी कैसे रहती एट दैट स्टेज ऑफ टाइम। सो इट्स लाइक हुँ, गुरु को तो तुम्हें सरेंडर और सीकर बन के ही जाना पड़ेगा कि सब कुछ अब आप देख लो, क्योंकि हुँ, सिमिलर वे यू गो टू गॉड कि अब तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, तो अब आप देख लो क्या करना है। तो हुँ। दैट वेज़ यू गो टू गुरु, सो यू आर आप ये राइट कि बात कोई पर्पज़ नहीं। आप ये हाँ, जो सॉरी। बात बता रहे हो तो मेरे पास ना वो सीन रोटेट हो रहा है, जो वो मोमेंट था मेरा जब मैं परम सर के पास गई थी। आई जस्ट केम आउट ऑफ माय मेडिटेशन और मेरी मतलब मैं हार्ट चक्रा करी थी और मैं अभी भी रो रही थी। मतलब इतना बड़ा आइडेंटिटी लॉस था मेरे पास उस टाइम पे। मुझे लग रहा था हू एम आई? आई मीन ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है और मैं ये क्या कर रही हूँ? हाउ कैन आई ड्रॉप टू सच अ लो लेवल? मतलब मैं हुँ, जो कहते हैं ना टूट जाना, बिखर जाना, पिट में होना, वो स्टेट थी मेरी। और मेरे को याद आए आई वाज़ सिटिंग इन माय मदर्स टेम्पल, वहाँ पे कृष्णा जी का एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट है। मेडिटेशन से निकल के सीधा आई वाज़ जस्ट बेगिंग, प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ दिस, प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ दिस। एंड आई थिंक 1 आवर भी नहीं हुआ होगा आफ्टर दैट कन्वर्सेशन विद कृष्णा जी एंड आई गॉट परम सर। परम सर। सिमिलरली आई वाज़ लाइक कि आई एम डन नाउ, इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। हेल्प मी विद द राइट रिसोर्सेज़। आई वाज़ इन द सिमिलर स्टेट लाइक व्हाट यू आर सेइंग कि आई वाज़ लाइक कि आप देख लो अब, क्योंकि ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है एंड देन औकात से विद बाहर। औकात से बाहर है। एग्ज़ैक्टली वर्ड इज़ दैट ओनली कि मेरे ह्यूमन ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी से भी ये चीज़ बाहर है। द पेन एंड सफरिंग वाज़ सो मच कि आपको लगता है ना इससे नीचे तो रॉक बॉटम क्या ही होगा, इससे नीचे तो आप कहाँ ही घुस जाओगे कि कहाँ ही वहाँ से निकलने का तो मतलब रॉक बॉटम से भी नीचे अगर कुछ होता है आई थिंक वो था वो फॉर मी आल्सो। देन आई वाज़ लाइक ओपन आर्म्स, आई एम सरेंडरिंग, आई एम सीकिंग के मे अब जो है आप देख लो एंड विदिन आई थिंक विदिन अ वीक ऑफ दैट आई ऑल्सो एनरोल्ड फॉर द कोर्स। फिर तो वही है, एक कोर्स, दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स एंड नाउ इफ आई लुक बैक आई डोंट इवन I mean, I cannot explain my gratitude to both of them. And obviously to Yogi Buddev ji as well. बहुत attunements ली मैंने उनसे भी. But yeah, amazing. It was a great journey throughout. So ये तो spiritual journey की बात होगी. अब हम बात करते हैं आपकी how then you reach to a purpose. Obviously मुझे लगता है कि हम सब आए हैं तो थोड़ा-सा तो बिगर पर्पस है हमारा हमसे ऊपर हुँ, कि इट्स नॉट अबाउट अस ओनली कि आए हो अपना काम करो और चले जाओ। देयर इज़ वन, हुँ, इवन इफ यू आर एबल टू डू थिंग्स फॉर पीपल नॉट जस्ट फॉर यू, लाइक फैमिली से ऊपर कुछ भी, फैमिली हुँ। के लिए भी हम सोचते ही हैं। सो हाउ डिड यू रीच टू द डूइंग दिस पॉडकास्टिंग एंड दीज़ हीलिंग्स? या आई थिंक पर्पस तो मैं नहीं कहूँगी कि पूरी तरह मैं डिस्कवर कर पाई हूँ अपना, बट लास्ट 2 इयर्स से मेरे पास एक थॉट कॉन्स्टेंटली चल रहा था कि एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा हो जहाँ सभी स्पिरिचुअल गुरुज़ हों और सीकर्स हों, एंड दे कैन शेयर एंड दे कैन आई मीन एक प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ पे अ, इस टॉपिक पे बात हो सके, खुल के बात हो सके, वल्नरेबल होके बात हो सके। और अगर 2 गुरु एक ही बात कह रहे होंगे तो इट गेन्स वेट, इट आई मीन इट सॉलिडिफाइज इट इवन मोर। आई तो एग्री। ये थॉट मेरे पास चल रहा था बहुत लंबे टाइम से। मैं सोच रही थी कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, एक फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं, ऐप बना एंड देती देन हूँ, आप इट तो ऐप भी बना हाँ, दोगे, मैं ऐप बना देती ऐप हूँ। ऐप बना लेते हैं। और वो मेरे पास बहुत लंबे टाइम से चल रहा था और एक्शन में कुछ नहीं था, बस वो थॉट चल रहा था, वो रिकरिंग थॉट था मेरे पास। और मैं बुद्धदेव जी से बात करी थी, गुरु जी से बात करी थी। तो तब मैं साल 2 साल पहले उनसे सेशन लिया था, तब मैंने उनसे ये बात की। फिर मेरा ब्रेक आ गया सेशंस में, वो थोड़ा अप डाउन चलता ही रहता है या या जर्नी में। फिर जब दोबारा कंटिन्यू किया, कहते 2 साल पहले भी तू यही बात कर रही थी, तू आज भी यही बात कर रही थी, तेरे को समझ नहीं आ रहा तेरे को करना क्या है? मैंने कहा गुरुजी समझ तो आ रहा है पर मैं इसको एक्शन में नहीं लेके आ पा रही। बस उसको इतना बोलना था, उसके बाद आई डोंट नो हाउ इट स्प्राउटेड आउट। आई जस्ट टोल्ड हिम वाओ! कि हाँ करना है और मुझे नहीं पता कैसे करना है, एंड देन इट जस्ट स्प्राउटेड आउट कि अच्छा एक ये। एंड आई टेल यू, आई वाज इन जेपीएम चेज, आई वाज वर्किंग, एवरीथिंग वाज फाइन, सडनली माय वर्क ऑथराइजेशन एक्सपायर्ड। ओके, तो एंड आप L1 पे हो तो सॉरी, सॉरी थोड़ा-सा वो वाला बात है, हाँ, हाँ, हाँ। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़, आप L1 पे हो तो आप डिपेंडेंट हो या आपके पास भी L1 है? बिकॉज़ यू कैन नहीं, नॉट नहीं, वर्क उनके पास L1 है, मैं हाँ, L2 एस, आई एम अच्छा डिपेंडेंट। L2, तो बट L2S पे वो यू काम कैन तो है। वर्क?
I can L2S work. means I that don't need EAD anything. I can work. hard you work. Okay. डायरेक्ट एडी भी नहीं चाहिए मुझे उसके लिए बट व्हाट Hmm. हैपेंड इज उनका टेन्योर 3 इयर्स का होता है यहाँ पे हिज टेन्योर एक्सपायर्ड इन इज गोइंग टू एक्सपायर्ड इन दिस जुलाई और फेब्रुअरी में उनका वीजा एक्सपायर हो गया था एंड देन देयर एम्प्लॉयमेंट दे फाइल्ड अ पिटीशन एंड एवरीथिंग तो ही वाज अलाउड टू वर्क उनके लिए तो पिटीशन फाइल हो गया तो दैट मीन्स अप्रूवल आ गया बट माय ऑर्गेनाइजेशन नीडेड अ रिसीट नोटिस कि हाँ आपको अप्रूवल मिल गया so I was suddenly out of work for 2.5 months. तो Wow. Hmm. एंड Hmm. आई थिंक वो फिर उसके बाद अपने आप ही पॉडकास्ट स्टार्ट हो गया आई डोंट नो मतलब वो इतना Hmm. ड्राइव था इतना फ्लो हो रहा था इतना डाउनलोड हो रहा था उस टाइम पे कि धीरे धीरे वो सब बिट्स एंड पीसेस उसका इंट्रो आउट्रो नेम चैनल लोग वो सब क्रिएट होता चला गया Wow. और Hmm. हो गया स्टार्ट आई थिंक मैंने गुरुजी से बोला कि मेरे पास कोई फॉलोवर तो है नहीं अभी पर आप आ जाओ ब्लेसिंग कर दो तो ये चल जाएगा मेरे बस की तो है नहीं देखो मेरी तो औकात से बाहर है इसको करना आप करा दो तो करा दो कहते अच्छा मैं तो आ जाऊंगा परम कहता है कि अभी तो इसने दुकान लगाई है अभी कैसे आप चले जाओगे तो मैंने कहा देखो गुरुजी आना तो पड़ेगा मेरी तो दुकान चलेगी नहीं इसके बिना तो कहते चल मैं आ जाऊंगा आई मीन ही इज सो स्वीट ही इज लाइक उनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि एक बच्चे से आप बात कर रहे हो हाँ, अपनी एज के easily. बंदे से आप बात कर रहे हो और आप खुल के बात कर सकते हो आई थिंक I agree. I agree. Hmm. तो ऐसे-ऐसे तो पॉडकास्ट स्टार्ट हो गया और एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो जब Hmm. मेरी जॉब ये अनऑथराइज्ड हुई थी, मैं 2 एंड हाफ मंथ्स के लिए आई वाज़ आउट ऑफ वर्क, तो आई वाज़ टॉकिंग टू अ फ्रेंड, वो फ्रेंड मेरे साथ आई थिंक 10 20 डेकेड्स से ही इज़ विद मी मतलब Hmm. वी हैव बीन सच अ लॉन्ग फ्रेंड, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स Buddies. Friends. बडीज बडीज तो उसको कुछ बताना नहीं पड़ता उसको पता रहता है तो उसको मैं बता रही थी कि आई एम अनऑथराइज्ड और मैं पॉडकास्ट पे भी काम कर रही हूँ तो वो एक दो हफ्ता तो उसने नॉर्मल रहा तीसरे हफ्ते बोला यार कुछ तो चेंज है देख अगर पहले तेरे पास जॉब नहीं होती ना तो वो बड़ी डेंजरस सिचुएशन थी तेरे लिए नहीं तेरे Hmm. आसपास वालों के लिए तूने तो खा जाना था सबको और अब तो अब तो तेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा जॉब है, नहीं है, तू लगी हुई है अपना। मैंने कहा अच्छा मैंने तो नोटिस ही नहीं की ये चीज़। तो कई बारी रिज़ल्ट आपको 3D से मिल जाती है कि हाँ, कुछ तो बदल रहा है। कुछ तो बदल रहा है एंड ये भी देखो ना व्हेन आई सेड वाओ कि ठीक है वो जॉब नहीं थी इट वाज योर टाइम टू बी अ, बैक विद योर सोल लाइक टू बैक विद योर राइट। इनर कॉलिंग के और वो आप ऐसा नहीं है मतलब यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली ब्लेसिंग यू विद वर्क तो वो नहीं था तो हुँ, कोई बात नहीं यू यू गॉट द वर्क इन सम अदर फॉर्म कि नहीं काम तो राइट। करना ही है चलो लेट्स डू दिस वो एक फ़ेज़ क्रिएट हो गया वहाँ पे, एक स्पेस क्रिएट हो गया कि जो मेरे थ्रू होना था उस टाइम पे वो हो पाया वहाँ पे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। So how is that purpose going? I know you have done 2-3 podcasts now. It's like shorts भी जा रहे थे, सब कुछ जा रहे थे नहीं जा भी रहा है. I know it must be tough now with the job क्योंकि full time या job के साथ passion pursue करना is I know a bit difficult like purpose or passion whatever it is. But yeah, हुँ, you are on it. You will continue it for sure, right? You are या, already. या। यस, Hmm, hmm, यस, hmm, आई एम hmm, लूकिंग फॉरवर्ड टू वर्क ऑन इट जहाँ तक ईश्वर की ब्लेसिंग है जैसे प्रभु की इच्छा है बट hmm, आई थिंक जब जॉब नहीं था तो आई वाज एबल टू रिलीज अ पॉडकास्ट इन वंस अ वीक अब मुझे ज्यादा टाइम आई थिंक अब 2 वीक्स के आसपास मुझे लग जाता है टू प्रिपेयर द एपिसोड अभी मेरे पास एडिटर नहीं है सो इफ एनी एडिटर इज लिसनिंग प्लीज रीच आउट टू रीच मी आउट टू यशिका एंड यू नेवर नो ना मतलब क्या पता क्या यूनिवर्स ओपन कर दे किस क्या पॉडकास्ट है में है ना यस यस ऑफ हम्म, कोर्स तो चेक आउट माय चैनल और उस पे चेक करके बताओ यार अगर किसी को एडिटिंग वेडिटिंग में इंटरेस्ट है उसको करने का तो हम्म, डू रीच आउट टू मी तो हम्म, आई थिंक अभी तक इट्स गोइंग गुड द जो मेन मेरे पास था थॉट उसको स्टार्ट करते टाइम कि मेरे को अपना मिररिंग हो जाए मेरे को अपनी चीजें दिख जाए और मैं उनको हील कर पाऊँ तो ऐसे काफी इंसिडेंट्स मिल जाते हैं कि हाँ आपको अपना वुंड दिख जाता है वहां पे और आप हम्म, हील कर पाते हो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं सो पॉडकास्ट ट्रू इज अ जर्नी इन इटसेल्फ journey. Hmm. Nobody knows that better than me. I started it 2 years back, and podcast has given me so much
not maybe materialistic भी दिया है. I got invited to Spotify event, when there really had a good networking, met with great people. तो Hmm. materialistic भी चीजें, got gifts, got goodies, but materialistically is something different. The kind of Hmm. conversation I had with people, knowing their journey. Right. और notice करो ना, whenever you talk to people आपको लगता है यार इतना कुछ करके the person is here, और आप अपनी 3-4 प्रॉब्लम में इतने lost हो कि you are not able to see the bigger picture. So when I started Yeah. talking to people, I realized कि how much people are doing, how much they are going through, how much still they are struggling and doing best of things in their life. And हम अपनी एक दो प्रॉब्लम के लिए इतना परेशान हो कि उसी में I mean in engross से रहते हैं. So yeah, Hmm. podcasting gave me that perspective, and it's really good to know stories of people. But जैसे आप अपनी पॉडकास्ट में पूछते हो लोगों से, थोड़ा सा मैं आज आपसे पूछती हूँ, बिकॉज यू आर माई गेस्ट, कि ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात होगी कि अगर थोड़े टाइम पहले जॉब नहीं लगती तो फिर यू विड बी लाइक आसपास के लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता. कुछ ऐसा और एग्जाम्पल दो, कुछ ऐसा और बताओ, व्हाट चेंज इन यू Uh, लाइक what ऑन अ वेरी changed डीप in लेवल. आई थिंक मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि पहले आई वाज जस्ट सो हुक्ड अप, मेरे पास अपना एसेंस नहीं था. मतलब हम्म. मैं क्या चाहती हूँ दैट वाज नॉट मीनिंगफुल टू मी. हम्म. वो क्या चाहते हैं सबकॉन्शियसली दैट वाज ओनली मीनिंगफुल टू मी. अब आई कैन, मुझे नहीं पता, हो सकता है अभी भी मैं बहुत बारी ऑपरेट करती हूँ वहां से, बट मुझे अब एक डिस्टिंक्शन हो जाता है कि ये जो मेरे माइंड में आवाज आ रही है ये कहाँ से आ रही है, मेरे पेरेंट्स की आ रही है कि ये मेरी है. और हम्म. एंड आई एम एबल टू मेक अ चॉइस कि मुझे खुद को फॉलो करना है, कि जो मेरे पास वॉइस आ रही है वहां से फॉलो करना है. तो आई थिंक वो एक शिफ्ट मुझे लगता है कि मेरा ऑपरेशन का सेंटर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है. और और क्या चेंज आया है मेरे भाई. बताओ बताओ, इट्स अ गुड टाइम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ. पॉडकास्ट इज अ या गुड टाइम टू नो how life changed for you, or in a materialistic terms, anything which you feel like on a. आई थिंक बट जब से मैं स्पिरिचुअल अबंडेंस मेरे पास रही है स्टार्टिंग से, टचवुड. और Hmm. जब हीलिंग ज्यादा करते हो तो यू बिकम अ मैग्नेट फॉर अबंडेंस. तो Hmm. Hmm. वो एक आई थिंक वो स्प्राउट होता रहा है ओवर द टाइम लाइफ में. अभी अगर मैं कहूँ, आई एम लिविंग इन वन ऑफ द बेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, और Hmm. आई हैव वेरी लविंग एंड सपोर्टिंग फैमिली. सो आई थिंक लाइफ हैज टर्न्ड ब्यूटीफुल. जहाँ एक बीइंग इन द पिट वाली सिचुएशन थी, वहां से अगर आप देख पा रहे हो लाइफ की ब्यूटी को, लाइफ तो वही थी, तब भी वही थी, तभी भी वही रिलेशनशिप्स थे, तभी भी अच्छा जॉब था. अब आई आई एम मोर एबल टू सी द ब्यूटी ऑफ द लाइफ. और एक सेंस ऑफ, ओवर द टाइम आपको एक यूनिवर्स के साथ एक सेंस ऑफ हार्मनी फील होता है. अगर आपके अंदर हार्मनी है तो आपको ऐसा, आप फुल्का भी सेक रहे हो तो आपको लगता है अरे आज तो एकदम परफेक्ट गोल बन गया, पता नहीं कैसे बन हाँ. गया. तो ब्यूटी. छोटी छोटी, हाँ, हाँ. छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत एक सिंक सा महसूस होता है. और अगर आप अंदर से ठीक नहीं हो ना, तो आपका हाथ बहुत बार जलेगा खाना बनाते हुए, कट जाएगा. तो वो, मेरे को तो वो साइंस लगता है कि हाँ, कुछ कहीं डिसहार्मनी में है, आई नीड टू हील समथिंग. तो वो एक कांस्टेंट कन्वर्सेशन यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ जो चलता है कि एम आई ऑन द राइट पाथ. और हम्म. आई थिंक पहले मैं इस बात में बिलीव नहीं थी, या मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं था इस चीज का कि एनर्जी ट्रेवल्स. तो अब मेरे को हम्म. लगता है कि एक थॉट अगर मेरे पास है तो विद इन सेकेंड्स वो दूसरे के पास होता है, जिसके लिए भी वो थॉट होता है. मतलब ऐसा नहीं होता, तो बहुत बार मेरे साथ भी होता है कि किसी के बारे में सोचो, उसका कॉल आ जाता है या उसका मैसेज आ जाता है, या फिर 1-2 दिन में वो रीच आउट कर लेता है आपको. एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ. यस्टरडे आई वाज रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट, और द टाइम वाज फॉर मी 6:30 AM. उनके लिए टाइम था आई थिंक 2 AM. मेरे यहाँ का यूएस टाइम, उनके लिए 2 AM था, मेरे लिए 6:30 AM था. एंड आई वाज इन डीप स्लीप. आई सडनली वोक अप कि ओह शी मस्ट बी वेटिंग. आई डोंट नो हाउ, मेरा अलार्म नहीं बजा, मेरे को कोई मैसेज हुक नहीं आया, कुछ भी नहीं. एंड आई रैन बैक टू अनदर रूम जहाँ फोन रखा था, एंड आई सॉ कि ओ उनका एक्चुअली में मैसेज आया हुआ था कि ओ हमारा अभी नहीं है क्या पॉडकास्ट. मैंने कहा नहीं नहीं 6:30 पे है. सो इवन इन डीप स्लीप यू रिसीव मैसेजेस, यू रिसीव इंटेंशंस. और
अब इसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो दैट्स ऑन योर डिस्क्रिशन, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब मुझे गाइडेंस चाहिए होती है तो मेरे गुरुज़ होते हैं मेरे पास, मेरे सो ट्रू। पेरेंट्स होते हैं, मेरे सोल सिस्टर्स होती हैं। दे आर जस्ट हुँ, हगिंग यू टाइट देयर, दे आर cocooning you if you're सो feeling the ट्रू। love, needing the love. So I think this is amazing. Seeing अमेज़िंग। another, इसको 5D बोलते हैं हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में, बट उस फेज़ में रहना, उस यू नो इट्स धुन में हेवन। रहना, इट्स डिफरेंट, इट्स हेवन इट्स ऑन अर्थ। हेवन। इनिशियली जब आप इस स्टेज पे जाने लगते हो ना, यू फील दैट कि व्हाट वर यू मिसिंग इन योर लाइफ इनिशियली, मतलब देन इवेंचुअली यू आर लाइक यूज्ड टू इट, दोस hugging and cocooning, you are very much comfortable with that, but initially when you are moving from 3D to 5D, it feels like कि अब तक कर क्या रहे थे यार, मतलब why were you not into this mode? तो हुँ, I agree to it. And another example वो तो मैं आपको दूँगी, because you were talking, I think I was seeing your Aparajita Diwala podcast, and I commented, and while I was commented, like I was thinking that I want to be part of this podcast the very second day you messaged me. So how beautiful the sync work, how beautifully the telepathy work. या I would have reached out to you by my own as well, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्यों बोलूँ दूसरा बोले. But हुँ, while I was typing that comment on your short or reel, I don't know, it was a reel on Instagram. I was thinking that I want to go on Yashika's podcast and talk. And then suddenly the next day you put a, like you messaged me, and it and was so I've been beautiful. searching for, so we had all these groups, right, in our work के Yeah. groups, and I was searching कि कहाँ, where is that girl? Where is that girl? And somehow I think Richa ji told me कि स्तुति अच्छा. है इंस्टाग्राम पे और उसका हैंडल है स्तुति हील्स. हाँ. Oh, I thought, oh, वो है स्तुति, oh my god. And then I started reaching out. So हुँ, it's like आप भी हुँ। सर्च कर रहे हो, दूसरा बंदा भी सर्च कर रहा है, then thing usually happens. वही वाली बात है ना, व्हाटएवर यू आर सीकिंग इज़ सीकिंग यू. अगर सो आपकी दैट्स एनर्जी है बैलेंस तो मैनिफेस्टेशन इज आज ऑटोमेटिक, वो आप. ऑटोमैटिक. और अगर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो भगवान का शुक्रिया है कि उस टाइम मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, क्योंकि आप क्या एग्ज़ैक्टली. सोच रहे हो, क्या नेगेटिविटी आप प्रोड्यूस कर द रहे हो अपने अंदर से, यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट. सो ट्रू, सो ट्रू. दैट्स काइंड ऑफ कॉज़िंग अ डिस्ट्रैक्शन फॉर योरसेल्फ, जो कि बहुत ही नॉट दैट हम्म. गुड स्टेट. सो या अमेजिंग यशिका, बहुत ही मज़ा आया बात करके. सेम जाते-जाते है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ पॉडकास्ट, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू लिसनर्स हू आर लिसनिंग, लाइक हाउ टू बी अनप्लग्ड, हाउ टू मूव योर टुवर्ड्स देयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी? आई थिंक मैं अपने चैनल से भी और यहाँ पे भी एक ही मैसेज देना चाह रही हूँ कि ठीक है, 3D है, सब कुछ है, बट आए किस लिए हैं यहाँ पे, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑल इट, वो एक क्वेश्चन तो बनता है अपने आप से. हम लोग आए हैं, चलो हमने पैसे भी कमा लिए, बच्चे भी कर लिए, शादी भी कर ली, घूम भी फिर भी आए, ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस भी हो गया, करियर में भी हाइट्स देख देख ली, सब कुछ देख लिया. बट हम आए किस लिए हैं यहाँ पे, एक वो क्वेस्ट अगर हो तो अनप्लगिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है. एक इंटेंशन हो कि मुझे जानना है कि मुझे व्हाई आई एम हियर. वो जब टाइम आता है तब आपका टाइम आता है. हर किसी के लिए पाथ होता भी नहीं है, आई थिंक आपको. और हमारे जैसे जो है, जो लातों के भूत हैं, तो उनके एग्ज़ैक्टली. लिए तो उनके लिए तो जब तक डंडे नहीं वो पड़ेंगे कुछ नहीं कर पाएँगे. हाँ, वो ईश्वर की कृपा है कि हमें वो डंडे पड़े, वो हमारे अंदर से एग्रीड. भूत निकले. तो I I don't know if this lifetime, next lifetime, whenever it opens for you, it's a beautiful thing. If you can set that intention, if you can ask for it, and whenever you ask, you get. I think if you ask for that, um, job is हो done. जाए. Yes, right. So thank you so much, Yashika. Thanks for being here. Thanks for being my guest. And or for listeners listening to us, stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I will see another one. Bye. Thank you so much. Thank Bye. you. Bye.